Dear students, let's start to solve the Rajpal classes quiz test 1 UGC CSIR physics. In this test, the regarding first question is regarding MUX multiplexer. MUX means multiplexer. So multiplexer is a logic circuit in which you have to use many number of uh, logic gates, and this is the block diagram of first multiplexer. This is the block diagram of second multiplexer. So as all of you know, the multiplexer is doing what? Multiplexer is doing, it convert more input to one input, because as you see here you have four inputs, I0, I1, I2, I3, four input lines, and this input line is converted into the one input output line. This is basically output line, this is input line. So four input line going to convert in one. So the multiplexer basically used to convert input lines to uh, many to one, many input line to one output line. Or these are the input lines, and here multiplexer has some selecting lines. Means selecting lines is doing which line is goes to output. Either I0 is goes to output, I1 is going to output, I2 is going to output, I3 is going to output. So this function, the function of selecting line, is doing which line is going to output. This logic goes to out, this logic goes to out, this logic goes to out. So parallel logic going to convert into serial logic. If first this one is goes to out, then this, then this, then this. So this is the function of output lines. If you watch my other video, then you will get the information more about the MUX. As I all video uploaded in Google Classroom. So in Google, please watch uh, all videos in Google Classroom. Then here our problem is, if four variable Boolean function is realized using 4x1 multiplexer as shown in figure. So this is the multiplexer 1, this is the multiplexer 2nd. So what will be the output at that after this logic system? This is the sequential system, because first multiplexer is connected to the second, independent of output. Now no feedbacking is here. So here you will get the output. So let me solve this question in other sheet. So please look at other sheet. I am going to share the other sheet where there I have the solution of this question. So this is the sheet at which all questions are solved. So question number 1 solution is basically this one is the question number 1 solution. So when we talk about the multiplexer, so here you have selecting lines. S1 selecting line is denoted by U, S0 is selecting line denoted by V. This line always LSV, you should remember. This line is always MSV. So in the right side line, most right line is basically LSV in case of selecting lines, and most left line is the MSV in case of selecting lines. So here you have two selecting lines of four input line. The relation between selecting lines and input lines is given by 2 raised to power n. Number of input lines, number of input lines
this formula you should remember. So number of input lines just equal to input lines just equal to 2 raised to power n. N is basically selecting lines, where n is represent the selecting lines, number of selecting lines, number of selecting lines. So in MUX, this is the basically block diagram of the MUX. In this block diagram, this MUX having many number of logic gates. So here logic gate don't visible. This is the basic block diagram of MUX. So number of selecting lines, यहाँ पर आप लिखोगे number of selecting lines. So n is represent the number of selecting lines. So as you see here, 2 selecting lines. So how many input lines you need? 4. As you see here, 4 lines available. So 2 lines I0 and I3 is going to connect grounded, and 2 lines is going to connect with BCC. BCC is basically any voltage connecting here. So whenever you are going to connect the logic system with some external voltage, that we consider logic 1 and logic 1, and whenever we are going to connect the uh, our logic circuit with ground, then this is known as the logic 0, because in digital you have only 2 weights, 0 and 1, on which all digitals depend. So this is 0 and 1, this is logic 1, this is logic 0. So the rule of finding the output here, basically the rule of finding the output here basically ये सॉल्यूशन है दूसरा लगा दिया. So basically, if the rule of finding the output here, first of all, you trying to apply the selecting lines here. If you apply selecting lines 0 0, this one, then this one is denoted by S1 bar, S0 bar. S1 bar means 0 0. All of you know in POS form, 0 is considered the var and 1 is considered non-var. So if you apply 0 0, if selecting lines are 0 0 digital logic, then I0 goes here. If selecting lines is 0 1 logic, then I1 goes here. Then if selecting line is 1 0 logic, then I2 goes here. And if selecting line is 1 1 logic, then I3 goes here. So here you have output. If you are going to write here output, this output is nothing but, suppose कर लो यहाँ पर मैं इस आउटपुट को लिखना चाह रहा हूँ, तो आउटपुट की जो वैल्यू होगी किसी भी MUX के बाद क्या होती है, वो ऐसे लिखते हैं I0 कब जाएगा, जब मैंने ये लिखा है S1 बार S0 बार होगा.
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। S1 बार S0 बार, जब आपकी दो लाइंस हैं, तीन लाइंस हैं तो ये तीनों का बार होगा S1 S0 S1 S2 S2 S1 S1 0 है ना, S2 S1 और S0 बार। जब थ्री लाइंस हैं सेलेक्टिंग लाइंस, तो कितनी इनपुट लाइंस होंगी, 2⁻3 8 इनपुट लाइंस होंगी। तो 8 बार आप टाइम आपको लिखना पड़ेगा। तो I0 कब जाएगा, जब S1 और S0 बार आ जाएगा, प्लस सेकेंड अब हम आप यहाँ पे लिखेंगे I1 कब जाएगा, I1 जाएगा जब S1 बार हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो S1 बार हो जाएगा, S0 हो जाएगा। और I2 कब जाएगा, I2 कब जाएगा, I2 जाएगा आपका जब S1 हो जाएगा, जब 1 0 हो जाएगा, मतलब S1 हो जाएगा एंड S0 बार हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और देन फिर क्या जाएगा, प्लस I3 कब जाएगा, I3 जब जाएगा तब आपका I3 जाएगा कब, जब आपका S1 S0 हो जाएगा, S1 S0 हो जाएगा। ओके, so you have a 2-bit combination here, many 4 combinations possible if both are selecting lines 0 0, both are selecting lines 0 1, both selecting lines 1 0 logic, and both selecting lines 1 1 logic. If selecting lines is 0, then this input is going to output. If selecting line is 0 1, then this input is going to output, and selecting line is 1 0, then this input is going to output, and selecting line is 1 1, this input is going to output in this form. So as you see here, I0 is connected, I0 is connected, I0 is connected with 0 logic, then this term is 0. I3 is connected with 0 logic, then this term is 0. Either S1 or S0, S2 any, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। These two are 0. I0 is 0 logic, I3 is 0 logic. Now I1 is how much, logic 1. This one is logic 1, here is logic 1. And S1 bar is basically U bar, as you see here. And S0 is B, plus I2 is logic 1, and S1 U, and S0 V. So this is the output here, as you see here, this is the output here. In short form, we can say if anywhere you have a MUX of this in this type, where there इस तरह का अगर आपको कहीं MUX मिलता है, तो ये कुछ भी नहीं है, U और B है, U XOR V, this is XOR V है। So U XOR V को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपका MUX आता है जिसमें I0 और I3 4x1 का MUX हो, और जिसमें I0 और I3 को 0 पर कनेक्ट किया गया हो, और I1 और I2 को 1 पर कनेक्ट किया गया हो, तब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये जो लॉजिक होगा वो ये होगा U XOR V। अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको 1 से कनेक्ट कर देता, I0 और I3 को मैं 1 से कनेक्ट कर देता, और I1 और I2 को ग्राउंड से कनेक्ट कर देता, अगर ऐसा होता, अगर ऐसे कर देता, इसको इन दोनों को ग्राउंड कर देता, I1 और I2 को ग्राउंड कर देता। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको शॉर्ट में लिख देना है।
I2 को ग्राउंड कर देता और इसको मैं 1 से कनेक्ट कर देता, ये 1 से कनेक्ट हो जाता VCC से, और जिसको हम लॉजिक 1 लेते हैं 1 से कनेक्ट कर देता। तब इसका आउटपुट क्या आता, सॉरी इस तरह से आपने लिख लिया, तब इसका आउटपुट क्या आता, 1 से कनेक्ट कर देता और सेलेक्टिंग लाइंस I0 और I3 1 से कनेक्टेड है और I1 और I2 0 से कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है A और B। तो इसका आउटपुट होता है, इसका आउटपुट क्या होता, इसका आउटपुट होता XNOR, बिकॉज ये तो XNOR का फॉर्मूला है, जहाँ पर U बार V प्लस UV बार XNOR होता है, XOR होता है। अब इसको अगर देखें तो ये आता 0, ये आता S1 S0 मीन्स S1 S0 A बार B बार A बार B बार प्लस S1 S0 डायरेक्ट विदाउट बार AB, और ये फॉर्मूला होता है XNOR का, ये फॉर्मूला हमारा XNOR का ही होता है, ये XNOR है। तो अब आप शॉर्ट में भी कहीं भी आपको अगर ऐसा सिस्टम आ जाता है तो आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि इस तरह से अगर होगा तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी XNOR और ये चीज़ बन जाएगी XOR। तो अगर ये सेंटर वाली बंद की हुई है और आउटसाइड वाली 0 से कनेक्टेड है तो XOR होगा, और सेंटर वाली ग्राउंड की हुई है, आउटसाइड वाली 1 से कनेक्टेड है तो XNOR होगा। तो ये शॉर्ट में करने का मेथड है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये वाला इनपुट कहाँ पर जा रहा है, इस वाले सेकंड इस पे जा रहा है। जब इस पे सेकंड पे जाएगा तो यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो ये सब क्लियर हो गया। अब ये वाला इनपुट जाएगा हमारा सेकंड पे, तो फर्स्ट वाले का ये आ गया, फर्स्ट वाले का ये हमने बताया है, फर्स्ट वाले का ये आ गया। सेकंड वाले का कहाँ आपने नोट करना है, सेकंड वाले के लिए क्या होगा, सेकंड वाले के लिए आउटपुट कैसे बनेगा, I0 S1 S0 बार, I1 S1 बार S0 बार, I2 S1 S0 बार, I3 S1 S0, ये सेकंड वाले का आउटपुट होगा जो नीचे लिखा हुआ है। अब सेकंड वाले में जब आउटपुट बनेगा तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज में कर देता हूँ, दिस साइज इज वेरी बिग। तो सेकंड वाले का आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये लिखा है सेकंड से क्या आउटपुट बनेगा, वो ये चीज लिखी हुई है एज यू सी हियर। सेकंड वाले की इक्वेशन ये मिलेगी, फर्स्ट वाले की तो हमने ये बना ली, सेकंड वाले की ये मिलेगी I0 S1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, I1 S1 बार S0, I2 S1 S0 बार, I3 S1 S0, और इसका जब हम इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यू, I0 कहाँ से कनेक्टेड है, इसके आउटपुट से सीधा सीधा I0 कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। एंड I1 हमारी S1 क्या है, अब W है, और S0 क्या है, X है। तो ये इस साइड वाली LSB होती है, इस साइड वाली MSB होती है, ये हमने ऑर्डर याद रखना है। और फाइनली जो ऑर्डर हमने निकालना है, फाइनली हम ये वाला ऑर्डर याद रखेंगे, U इज द MSB, U इज द MSB। यहाँ पर ये फाइनल वाले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना है कि जो फाइनल में फंक्शन होता है उस ऑर्डर में आता है। दिस इज द LSB, ये हमारी LSB रहेगी जो फाइनल में, और ये हमारी MSB रहेगी। तो जो ऑर्डर लिखना है मैंने UVWX में रखना है। तो यहाँ पर UV, ये जो मैं I1 की I0 की वैल्यू कितनी है, U बार V प्लस UV बार, और S1 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W बार, S0 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X बार, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 भी उसी से कनेक्टेड है सीधा सीधा, तो U बार V प्लस UV बार, एंड S1 S0 बार, S1 की वैल्यू कितनी है, W, S1 बार की वैल्यू कितनी है, W बार, S0 की वैल्यू कितनी है, X, यहाँ पर S1 बार है ना, S1 बार की वैल्यू W बार, S0 की वैल्यू X। अब नाउ I2 कितना है, I2 इसको देखते हैं, I2 कितना है, 0, क्योंकि I2 अब यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये 0 लॉजिक होगा।
यहाँ पे जीरो लॉजिक होगा, यहाँ पर भी जीरो लॉजिक होगा। तो अब I2 0 हो गया, S1 S0 बार, S1 कितना है, S1 W है, S0 बार कितना X बार है। अब नाउ नेक्स्ट इज I3 को देखते हैं, I3 फिर से 0 है, S1 बार कितना है W बार, और S0 कितना X है। तो ये हमारा यहाँ पर ये कितना आ गया। अब मैंने ये वाला ये फंक्शन जिसमें होता है उस ऑर्डर में रहना है, u को MSB में लिखना है, v को x को LSB में लिखना है, बाकी ये ऑर्डर रखना है UVWX। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ऑर्डर हमने फाइनल फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। अब ना आगे, तो ये वाला यहाँ पर हमने सॉल्यूशन निकाला इसका, तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों टर्म तो जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, बस ये वाले टर्म बचेंगे UVW। इस टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म में U बार B और U बार B यहाँ भी आ रहा है, W बार यहाँ भी आ रहा है, W बार यहाँ भी आ रहा है। तो ये इस वाले टर्म में मैं कॉमन ले लेता हूँ UVW बार, तो यहाँ से बचेगा मेरा X बार और ये X बचेगा। दूसरे टर्म में UV बार, यहाँ भी UV बार है, W बार भी है, W बार भी, ये कॉमन ले लो, यहाँ से ये बचेगा। अब ये मेरी प्रॉपर्टी होती है X बार प्लस X हमेशा 1 होता है, दिस इज ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 होता है, बूलियन फंक्शन से, बूलियन इक्वेशन है ये, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये सारा 1 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो सी आंसर करेक्ट है। अगर हम उसमें देखें तो सी आंसर इसका करेक्ट है। तो जो हमारा गूगल का वो है, इसमें देखें तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। ये हम इसमें देखें तो ये वाला इसका आंसर, सी आंसर इसका करेक्ट है, ये वाला, ये आंसर इसका करेक्ट है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो करेक्ट नहीं आता, यहाँ पे क्लिक करता हूँ करेक्ट आता है, यहाँ पर करेक्ट नहीं आता, यहाँ पे क्लिक करता हूँ करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है इसका। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा इसमें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ये आपके क्वेश्चन पूछा है, नेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आपके कभी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फिजिक्स नेट में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद आपको यहाँ पर ये ये गेट कौन सा है, नॉर गेट है, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर आपका डॉट लगा हुआ है, बबल लगा हुआ है, ये यहाँ पर बबल है, यहाँ पर भी बबल लगा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये विजिबल कम है, बहुत ही स्मॉल सा पेपर, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही था, तो ये बहुत लेस विजिबल है। और जब तक आप इसको नॉर नहीं करोगे तब तक इसका आंसर नहीं मैच करेगा किसी कैसे भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये V है, ये P, इसमें बोला हुआ है 4 डिजिटल आउटपुट्स P, B, T and S monitor the speed B, tire P, tire pressure T, temperature T and relative humidity H of a car. These outputs switch from 0 to 1 when the value of the parameter exceed 85 km/h speed, 2 bar pressure, 40 degree centigrade temperature, more than 40 degree centigrade temperature, 50% more humidity. So a logic circuit that is used to switch on a lamp at the output E is shown below. So here जैसे ही आपकी स्पीड 85 से ऊपर जाएगा और प्रेस ये वाली चीज इतने से ऊपर जाएगी, ये वाली चीज इतने से ऊपर जाएगी और ह्यूमिडिटी 50% से ऊपर जाएगी, तो आपका स्विच 0 से स्विच 1 में आ जाएगा, लॉजिक 0 लॉजिक 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी? ऑन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच द लैम्प ऑन? तो कार में एक आउटपुट, ये जो आउटपुट है कोई सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर यहाँ कोई सेंसर लगा हुआ है, सेंसर
ने क्या किया, सेंसर के आउटपुट हैं बी, प्रेशर पी, टेम्परेचर टी और ह्यूमिडिटी एस, जो सेंस कर रहे हैं वेलोसिटी को। एक वेलोसिटी सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है। वो यहाँ से आउटपुट देता है और वो इस लॉजिक सिस्टम पे जाता है, इस लॉजिक सिस्टम पर जाता है। और इस लॉजिक सिस्टम पे जाते ही यहाँ पर अगर बल्ब ऑन हो जाता है तो आपको अलार्म मिल जाता है कि अब हमारा कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं इनसाइड द कार, और आपको एक मैसेज मिल जाता है आफ्टर लाइट ऑन। ओके, सो यहाँ पर कोई सेंसिंग ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। सेंसिंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पीड and humidity of the car, and this output is going to on a digital circuit, and digital circuit give you the alarm, give you the warning. If you switch on, then you will get the warning. If you switch zero, then everything is okay. So this is the system, and ask you about at what condition of out of 4 the car switch is on. तो ये चीज हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए वी विल अगेन यूज सीट नंबर, सॉल्यूशन सीट। आई एम गोइंग टू शेयर सॉल्यूशन सीट अगेन। सो दिस इज माय सॉल्यूशन सीट, एंड सी हियर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. See here, question number 2. This is the question number 2. Question number 2, sensor is here, which is sensing the pressure, temperature, and humidity, and tire pressure also. So if the pressure is less than 85, velocity is less than 85, car velocity less than 85, pressure is less than 2 bar, temperature is, humidity is less than 50%, temperature less than 40%, so zero, switch is zero, or when logic zero. And when pressure volume is greater than 85, this is greater than the logic 1. Logic 1. So you have a circuit here. Here you have a sensor, then sensor output is going to input in the logic circuit. Here you have a logic circuit, this one, and here you have the first we are going to try it. We are going to find out the output equation, this one. So this one equation, all of you know, this is the NOT gate. So if B is there, then B bar is there. If P is there, then P bar is there, NOT gate. T is there, then T bar. H is there, then here you have H bar, because complement of V, complement of pressure, complement of temperature, complement of humidity, you will get here. The complement of pressure and complement of velocity is going to, this is a gate X, this is the gate at NOR only, NOR gate, and this is also NOR gate, second NOR gate. These two are going to apply here. These two are going to apply here. 2 input NOR gate. So 2 input NOR gate is doing what? A combination of OR plus NOT. First you add both, B bar plus P bar, then complement both. Similarly here, first you add what? T bar plus S bar, then complement both. Here you are going to, here we are going to use the De Morgan's theorem. So De Morgan's theorem, the var of V bar plus P bar is converted into the B bar bar P bar bar with multiplication. This is the De Morgan's theorem, because A plus B bar, all of you know A plus B bar is what? A plus B bar is nothing but A bar dot B bar. A bar dot B bar.
दिस इज द डी मॉर्गन थ्योरम। एडिशन में ऐसे होता है, मल्टीप्लीकेशन में अगर इसका बार कर दिया जाए तो वो उल्टा कर देता है। ए बी बार अगर है कहीं पर तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ए बार डॉट बी बार। सो now I am going to write. So this is just b double bar is just b, p double bar is just p, complement of complement always same, वही वही आ जाएगा आपका। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी डबल बार ही होगा, सॉरी यहाँ पे सिंगल रह गया, यहाँ भी डबल बार होगा। तो टी डबल बार एच डबल बार इज टी एच, ऐसे हो जाएगा हमारा। तो ये वाला ये जाएगा, अब ये इनपुट पे जाएगा। यहाँ पर कौन सा गेट लगा हुआ है, एग्स ओनली और गेट लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है। दिस इज और, दिस इज नॉट नॉर, दिस इज और ओनली, सिंपल और है। इस पे जब अप्लाई होगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देगा। ये इसके इनपुट है, इसका इनपुट एक तो हो गया पी वी और इसका एक इनपुट हो गया टी एच, दो इनपुट हो गए। और दोनों इनपुट जब इसको टू इनपुट और गेट है, दोनों को ऐड कर देगा। तो दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लैम्प ई। लैम्प ई का जैसे ही मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, तो अब मैं इस फाइनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लूंगा 1 by 1, कब मेरा लॉजिक 1 आएगा, कब मेरा लॉजिक 0 आएगा। ऑप्शंस में लगा के देख लेते हैं, लॉजिक 1 कब आएगा, लॉजिक 0 कब आएगा, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मुझसे गलती हो गई है, इसमें डबल बार ही होगा। तो ये वाली चीज़ हमने देख लेना है। अब ई ये वाला इतना हो गया, ये 0 बी पी वी प्लस टी एस 0 होगा तो लैम्प क्या होगा, 0 होगा तो लैम्प क्या होगा, ऑफ रहेगा। सॉरी यहाँ पे भी अपोजिट लिखा हुआ है, लैम्प क्या होगा, ऑफ रहेगा इस केस में। लैम्प क्या रहेगा इस केस में, ऑफ रहेगा। 0 से और 1 होगा तब ऑन हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट लिख गया है, प्लीज करेक्ट इट। तो ये ऑफ होगा और ये ऑन होगा, 1 होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। देन नाउ चेक विद द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिकली B is less than 85 degree, P is less than 2 bar, less than 85 degree means 0 logic, less than 2 bar is 0 logic, P is greater than 40 degree, 1 logic, H is greater than 50 degree, 50%, then 1 logic. So if you apply these two, if this is 0, then 0 0 is 0, and T or S 1, तो 1 1 is 1, तो दिस इज 1 आ जाएगा और लैम्प इज ऑन हो जाएगा। तो पहला ही आंसर इसमें करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल चेक सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, V is less than 85 0 logic, P is less than 2 bar 0 logic, T is greater than 40 degree 1 logic, H is less than 50 degree 0 logic. So first is 0, 0.0 is 0, 1.0 is also 0। फिर किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा आएगा कि जिसमें लॉजिक 1 मिलेगा। फिर आप कोई भी ऑप्शन लगा लें, सभी में ऑफ मिलेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, तो लेट मी गो टू द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर क्विज पोर्शन। So this is the quiz I am going to share to you. So here is the first option is correct. As you see, if I tick here, then this one is correct, this one is wrong, this one is wrong, this one is wrong. So first option is correct. Now come to the third question. Third question. थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा,
जिसमें हमने सॉल्व करना है, द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट given below is. Combination circuit, you have two type of logic circuit. One is the combinational circuit, another one is the sequential circuit. Sequential circuit, for example, flip flop, counter, etc., shift register. And this is the combinational circuit. Combinational circuit where there no feedbacking, no memory. जहाँ पर मेमोरी होगा वहाँ पर आपका होगा सीक्वेंशियल सर्किट, और जहाँ पर मेमोरी नहीं होगा वहाँ पर आपका होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट इनपुट पर नहीं जा रहा है, तो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट है. तो here you have a combinational circuit in which you have the ये एंड गेट लगा हुआ है, ये भी एंड गेट है, ये भी एंड गेट है. दिस इज एक्सॉर गेट और दिस इज एक्सॉर गेट. So let me come to the solution sheet. So I am going to say a solution sheet again. Solution sheet is this. So let's see about the solution of this question. The solution of this question, as you see here, this is A, this is B goes to AND. AND is doing what? A dot B. And this is C. C connection is this, and V connection is this. Input is this, C input is this, going to connect this AND gate. AND gate is doing what? VC, V dot C. This is property all of you know. AND gate is doing multiplication. Then this input again goes to AND, and from here C goes to AND. Then the all are A dot B dot C. And from here this output of second and output of first AND, output of second and output of first AND work as a input of XOR. So XOR gate is doing what? This is the XOR gate. XOR gate. XOR gate is doing A dot V, means suppose this one is the X, this one is the Y, this one is the Y, this one is the X. So this it means you are going to write here X XOR Y, X XOR Y, X XOR Y. So X XOR Y can be written in the form A dot B XOR B dot C. So finally, let's consider this one is XY, and this is considered, let's suppose this is the Z or this is W. So finally these two input, one input coming from the third AND and one input coming from the output of the third AND, and other input is coming from the output of the XOR, first XOR. And here again final output is Z XOR, एक और XOR गेट लगा हुआ है XOR W, Z XOR W. So Z XOR W can be written at Z is A dot B dot C XOR और ये वाले का XOR, मतलब W is what? W is this. So ये वाला लिख सकते हैं. तो Y is this, Y ये हो जाएगा. अब इसको हम ऑपरेट कर देते हैं ABC XOR, ABC XOR. पहले इसको ओपन कर लेते हैं. XOR का जो फॉर्मूला होता है A XOR B is nothing but AB बार प्लस A बार B. यहाँ पर लगा दो तो AB BC बार प्लस AB बार BC. इस तरह से हो जाएगा. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकते हैं हम. तो ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी. तो यहाँ पर आ जाएगा X Y बार प्लस X बार Y. तो X इज AB और दिस इज BC. तो ये आपने लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला ABC XOR. अभी इसका XOR नहीं करेंगे, बाद में इसको और सॉल्व कर लेते हैं. AB अब यहाँ पे डिमॉर्गन लगा दो. मल्टीप्लीकेशन डिमॉर्गन एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है, इंडिविजुअल बार हो जाता है B बार प्लस C बार. यहाँ पे भी डिमॉर्गन लगा दो A बार प्लस B बार BC. अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर A B B बार
ए बी बी बार आ जाएगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, और ए बी बी बार, और एक और आ जाएगा ए बी सी बार, ए बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो आएगा ए बार बी सी, फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे वाले में होगा बी बार बी सी, बट बी बार की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर एक वन है तो दूसरा जीरो होगा, दूसरा वन है तो पहला वन है, दूसरा वन है तो एक जीरो होगा, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन वन जीरो जीरो ही होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी बार, ये एज इट इज आ जाएगा ए बी सी बार, ये वाला, यहाँ पर ए बार बी सी आ जाएगा, यहाँ पर फिर वही रूल लग जाएगा बी बार बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बार बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर से वही रूल लग गया, जीरो हो गई, तो ये वाला जीरो हो गया, तो ये हमने ऐसे कर दिया यहाँ पर। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, बी कॉमन है, ए सी बार प्लस ए बार सी, बी कॉमन ले लिया, बी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद आगे करते हैं, बी कॉमन ले लिया तो ये बन गया ए सी बार ए बार सी, बी हमने कॉमन ले लिया इसमें। अब ये हमारा क्या बन गया, ए सी बार, अब हम इस पे फिर से क्या लगा देते हैं, इस पे एक्स और लगा देते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको बाई मान लेते हैं, तो एक्स बाई बार प्लस एक्स बार बाई, तो इसमें हमने एक्स और फिर से लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा दिया, एक्स और का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। उसके बाद जब एक्स और का फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये वाला बन गया हमारा, डिमॉर्गन लगा दो इस पर, तो इसको सॉरी डिमॉर्गन लगाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स और सी, ए एक्स और सी लिख सकता हूँ, लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, और बी इसके साथ में है क्योंकि ये एक्स और का ही फॉर्मूला है, और उसके साथ में इस पे डिमॉर्गन लगा दिया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और यहाँ पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब इस पे आपने क्या लगाया, डिमॉर्गन फिर से लगा दिया, तो ए बी सी, ये ए एक्स और सी बार प्लस बी बार, ये ऐड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे ए बार ए आएगा पहले, तो जीरो हो गया, फिर आएगा हमारा बी बार बी भी हमारा जीरो हो गया, ओके, बी बार बी हमें इसमें आएगा इस टर्म में, वो भी जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये दोनों जीरो हो गए, इसमें करो, इसमें आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फिर क्या आएगा, ए बी सी बार, ये सभी का मल्टीप्लाई होगा ना, इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें किया तो जीरो आया, इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें किया तब जीरो आया, इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें किया, इस वाले में किया, इस वाले में करेंगे, अब थर्ड में, पहले में करेंगे तो जीरो आया क्योंकि ए बार ए की वजह से जीरो आ जाएगा, दूसरे में करेंगे तब किसकी वजह से जीरो आ जाएगा, बी बार बी आ जाएगा इसमें, तब जीरो आ जाएगा, तीसरे में करेंगे तो ए बी सी बार दो आएंगे, तो सी बार की ये प्रॉपर्टी होती है सी डॉट सी तो हमेशा क्या रहेगा, सी बार क्या रहेगा, वन ही रहेगा, सॉरी सी बार ही रहेगा, डबल नहीं होगा, सी बार ही रहेगा, सी बार क्या हो जाएगा, सी बार रहेगा, तो ये एक टर्म आ गया, तीनों की मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म की मल्टीप्लाई पहले टर्म में करेंगे, ए बार दो बार आएगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, ए बार बी सी, और इसमें टर्म में करेंगे तो दो बार बी सी, एक बार बी है और एक बार बी बार आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और थर्ड वाले में करेंगे तो एक बार सी है और एक बार सी बार हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद हमने ये ए बी सी एज इट इज लिख दिया, ए बार इसका अगर मैं इसको लिखता हूँ ना ए एक्स और सी, तो ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है ये एक्स नॉर बन जाता है, एक्स और का जो आउटपुट पे अगर मैं कंप्लीमेंट लगा देता हूँ तो वो एक्स नॉर बन जाता है, तो ये एक्स नॉर बन गया, ये बी बार करो या मत करो डजंट मैटर, तो ये वाली चीज यहाँ पर आ गई एज इट इज, ये वाली चीज यहाँ पर आ गई, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। आगे हमने ये किया है इस तरह से। एक्सोर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी और ए बार सी बार, ये एक्सोर का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लिख देते हैं। एक्सोर का फॉर्मूला यही होता है। तो अगर दो में रिलेशन निकालना है एक्सोर का तो यही रिलेशन आता है हमारा। और ये बी बार हो गया, और यहाँ से हमें मिल गया ए बी सी बार, यहाँ से मिल गया ए बार सी बार, एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं इसको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, ए बी सी और ए सी, तो ए सी डबल आ रहा है, तो डबल तो होगा नहीं, तो ए बी सी आएगा इसका मल्टीप्लाई में। इसमें इस तरह के कितने भी टर्म मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी सी इंटू ए बी सी रहेगा, ए बी सी और डॉट ए सी ए बी सी रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें अगर मैं ए बी सी की मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बार से ये जीरो हो जाएगा। इसमें अगर मैं ए बी सी की मल्टीप्लाई करूंगा तो बी बार से ए बी जीरो हो जाएगा। और ये बन गया मेरा ए बी सी बार, और ये बन गया ए बार बी सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी मैंने कॉमन ले लिया, सी बार सी फिर बन गया, तो यहाँ से ए बार बी सी आ गया, तो ये बन गया मेरा ए बी सी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अगर सी जीरो लेते हो तो ये 1 हो जाएगा, और सी 1 लेते हो तो ये जीरो होता है, 0 + 1 हमेशा 1 ही होता है, तो ये ए बी रहेगा। और ए बार बी सी ये हो गया हमारा इतना। अब एक प्रॉपर्टी होती है x + x बार y = x + y रहता है, x बार को छोड़ देते हैं। तो ये अगर मैं इन दोनों में b कॉमन ले लूं तो ये b इधर आ जाएगा, तो a + a बार c, और ये प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या मिलेगा मेरा, a + c × b, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये a बार नहीं लिखा जाएगा, a + c लिखा जाएगा, a + c। तो ये वाला हमारा हो गया b a + c। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ चेक कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द क्विज। So quiz is here. So this is your quiz. If I put here, then correct answer is C. Here is not correct. Here is not correct. Here is correct. You see correct, or here is not correct. So its correct answer is C. तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 4। अगेन वी हैविंग ए MUX क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सर 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। So a 4x1 multiplexer is to be used for generating the output carry of full adder, output carry of full adder, and A and B are the bits to be added, while C in is the carry input. C in is the carry input and C out is the carry output. A and B are to be used as a select bits. ये वाली select bit है, selection line पर, with A being the more significant select bit. इसमें A आपको more significant बोल रखा है, और ये LSB है, A MSB है, B LSB है. Which one of the following statement correctly describe the whole choice of signals to be connected to the input? I0 is the input line, I1 is the input line, I2 is the input line, I3 is the input line, so that output is C out. यहाँ पर C out आउटपुट हो, इनमें से कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, वो हमें निकालना है। तो हम चलते हैं फिर से अपने उसी पर, सॉल्यूशन पर। Solution is this. So 4x1 multiplexer, we are going to use generating a carry of full adder. So सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो ये आपको मालूम है, as I told you earlier, these are the selecting lines और these are the input lines. सॉरी, ये हमारी इनपुट लाइंस हैं
और ये सेलेक्टिंग लाइन से। तो आपने इनपुट लाइन की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या वैल्यू होगी। सेलेक्टिंग लाइंस आपको दी हुई है, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसका ऑर्डर क्यों ले लिया अपने आप से, ए बी और सी इन, क्योंकि ए इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट उन्होंने बोला हुआ है, बी एंड सी ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। और इसका आंसर क्या होगा, I0 S1 S0 बार, ये मुझे मालूम है कि 2 बिट का टू सेलेक्टिंग लाइंस का अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, I0 S1 बार S1 बार S0 बार, I1 S1 बार S0, I2 S1 S0 बार और I3 S1 S0। ये कुछ भी नहीं है, ये सेलेक्टिंग लाइंस के कॉम्बिनेशन है। क्या क्या डिजिटल क्या क्या इनपुट हो सकते हैं सेलेक्टिंग लाइंस पर, 0 0 कॉम्बिनेशन, 0 0 हो जाएगा तो S1 बार S0 बार, और ये 0 1 है S1 बार S0, और ये क्या है 1 0 है S1 S0 बार, और ये 1 1 है, तो ये आपका आ जाएगा। इस तरह से सिलेक्टिंग लाइंस के ये इनपुट्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमने ये लिख देते हैं। और ये हमें पहले फाइंड आउट करना है ये वैल्यू क्या आएगी, फिर हम बाद में अपना I0 I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो हमारा इनपुट है, जो सेलेक्टिंग लाइंस पे हम दे रहे हैं, वो उसके साथ कैरी कितनी आ रही है, कैरी इनपुट है ना, और वो फुल एडर की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो हमारा MUX है फुल एडर की तरह वर्क कर रहा है। तो फुल एडर की तरह वर्क कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने क्या है इसकी फुल एडर की टेबल बना ली। फुल एडर 3 बिट्स को ऐड कर सकता है, फुल एडर 3 बिट्स को ऐड कर सकता है। एक तो आपकी ये सेलेक्टिंग लाइंस है, ये वाली 0 0 0 0 0 0, और ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, ये सारी सेलेक्टिंग लाइंस है, और ये कैरी है उनके साथ में, ये उनके साथ में कैरी है। तो मैं इन तीनों इनपुट्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। पहले मैंने 0 0 0, तीनों 0 हैं कैरी के साथ, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये मेरा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैं 3 इनपुट इस पे देता हूँ, फुल एडर क्या कर सकता है, 3 बिट को ऐड कर सकता है, हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट को ऐड करता है। तो ये इनपुट्स हो गए मेरे एडर के, फुल एडर के 3 इनपुट्स हो गए। एक तो मेरी सेलेक्टिंग लाइंस है और एक कैरी इनपुट है। तो ये कैसे लिखा है मैंने, पहले 0 0 0 यहाँ पे लिख लिया, फिर 2 का कॉम्बिनेशन में 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर मैंने 1 1 1 लिख लिया, ये हो सकता है ये 1 हो जाए, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1 1, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों का सम करेंगे, तो तीनों का सम करेंगे तो 0 आएगा, कैरी आउटपुट पे जो कैरी आएगी वो 0 आएगी। इन तीनों का सम करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 इज 0, कैरी 0, 0 1 इज 1, कैरी 0, फिर से कैरी 0 आ गई, 0 1 इज 1, कैरी 0, 1 0 1 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, कैरी 0 और 1 सम, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, कैरी 0, और 1 प्लस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी 1, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है, और 1 प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। इन तीनों को ऐड करेंगे 1 0 1 को, तो सम आएगा 2, 1 1 क्या हो गया 2, 1 0 और 0 1 2 हो गया। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 1, तो 0 हम लिखते हैं सम, और कैरी में डालते हैं 1 को हम डालते हैं कैरी में। यहाँ पर 1 1 0 1 1 0 को हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 को यहाँ से फिर भी सम 2 आएगा, 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 इज द सम और कैरी इज 1, कैरी इज 1 ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर 3 को ऐड कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 1, तो इन तीनों को ऐड करके 3 डेसिमल नंबर आएगा। 3 डेसिमल नंबर को कैसे लिखते हैं, 1 1, 2 रेज टू पावर 0 इज 1, 2 रेज टू पावर 1 is 2, 2 plus 1 is 3, तो 1 1, 1 सम 1 कैरी। तो ये मेरा ऐसे मैंने फुल एडर बना लिया, जिसका ये वाला फुल एडर का ये है सर्किट डायग्राम, सॉरी टेबल, ट्रुथ टेबल ये है फुल एडर। अब मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पर कि जो कैरी आउटपुट है, जो कैरी है वो आउटपुट है, ये वाली चीज कैरी आउटपुट है मेरा, वो किस किस का चीज का फंक्शन है, ए बी और कैरी इनपुट का, इन चीजों का। तो ये जो कितना आ रहा है इतना आ रहा है, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इस ऑर्डर में लिख लूंगा कि यहाँ पर मेरा इसको मैं अगर मैं आउटपुट को लिखूं
जो आउटपुट है जो फुल एडर की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, फुल एडर की तरह काम कर रहा है। तो कैरी आउटपुट ये आया मेरा, ये जो वैल्यू है ये वाली है, किस चीज का फंक्शन है, इन चीजों का फंक्शन है। तो मुझे मालूम है कि इसका क्या करूं मैं, मैक्स टर्म निकाल लूँ, कौन कौन से मेरे, सॉरी मिन टर्म्स निकाल लेता हूँ, कौन कौन से मिन टर्म्स हैं। तो मिन टर्म्स क्या होते हैं, जहाँ जहाँ 1 है, एक तो यहाँ पर 1 है, तो इसका डेसिमल नंबर कितना हो गया, ये मिन टर्म कितना हो गया 3। देखो यहाँ पर मैं डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ इन तीनों इनपुट्स के, 000 का 1 0 ही होगा, 001 का डेसिमल नंबर 1 होगा, 010 का 2 होगा, 011 का 3 होगा, 100 का 4 होगा, 101 का 5 होगा, 110 का 6 होगा, 111 का 7 होगा। ये आप निकाल लेना, इतना ही होगा। एक 1 आपका यहाँ पर आया, तो इसका मिन टर्म क्या हो गया, ये वाला हो गया। एक 1 आपका यहाँ आया, ये सभी में 1 आ रहा है, 2 1 आपके यहाँ पर आए, तो आपके मिन टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिए एम, और मिन टर्म ऐसे लिखते हैं। अगर मिन टर्म को आपको देखना है तो गूगल क्लासरूम में मेरा वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। मैं मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म के बारे में सारा कुछ बताया गया है। तो 3 5 6 7, तो ये मिन टर्म्स हो गए इसके, ये मिन टर्म्स हैं 3 5 7, जहाँ पर 1 1 आ रहा है। तो एसओपी फॉर्म में हम 1 को लेते हैं मिन टर्म, ऐसे मिन टर्म, तो ये वाले मेरे मिन टर्म हो गए 3 5 6 7। ये चीजें आई हुई है मेरे आउटपुट पर, जो ये आउटपुट है वही इसका आउटपुट है, क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है एज ए फुल एडर वर्क कर रहा है, तो फुल एडर में ये आया, तो ये इसका आउटपुट है। ये मुझे मालूम नहीं है ये क्या चीज है, अभी ये मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने ऐसे इसका आउटपुट निकाल लिया है फुल एडर की तरह, ये मिन टर्म हो गया। अब मुझे I0 I1 I2 I3 पता करना है, तो वो मैंने आपको बताया था, पहले हम लिख लेते हैं I0 I1 I2 I3, और एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसमें दो आपके हॉरिजॉन्टल रो होंगी और 4 आपके वर्टिकल होंगे। 2 आपके हॉरिजॉन्टल रो 0 और 1 जो C इनपुट के लिए दिखा रहे हैं, ए बी तो यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों टर्म तो मेरे यहाँ पे होते हैं, कलेक्टिंग लाइंस बने, तो ए बी बार को I0 देगा, ए बार बी को I1 देगा, यहाँ से देखो, ए बी बार को I2 देगा, और ए बी को I3 देगा, ये वाला है ना, ए बी I3 से मिलेगा। तो ये वाली चीज आपकी बची, ये वाला बिट, तो इस वाली बिट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये बिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, 0 के लिए C इन बार और 1 के लिए C इन। अब जो मिन टर्म्स आए हुए, अब यहाँ पर देखो, ए बार बी बार C इन बार, मतलब ये जो टर्म है 0 0 0, क्या होता है उसका 0 डेसिमल नंबर, ओके, यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आया ए बार बी बार C इन 0 0 1, 0 0 1 का डेसिमल नंबर क्या है 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए बार बी का मतलब 0 1 और C यहाँ पर आएगा, ये वाला C है। C बार यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 0 का डेसिमल नंबर क्या है 0 1 0 का डेसिमल नंबर 2। इस तरह से मैं ये सब डेसिमल नंबर भर दूंगा, इसमें 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सारे डेसिमल नंबर मैंने इसमें एंट्री कर दी। अब जैसे ही एंट्री की, जो मेरे मिन टर्म है उनको मैंने सर्किल कर दिया। 3 मेरा मिन टर्म है, इसको सर्किल कर दिया। 5 मिन टर्म है, इसको भी सर्किल कर दिया। 6 मिन टर्म है, इसको भी सर्किल कर दिया। 7 मिन टर्म है, इसको भी सर्किल कर दिया। ये मेथड है निकालने का, I0 I1 I2 I3 कहीं पे कैसे निकालेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं, उनको मिन टर्म को सर्किल कर देते हैं। अब जो सर्किल किए हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे कोई सर्किल नहीं किया हुआ, तो उसके नीचे मैं लिख दूंगा 0। यहाँ पर सर्किल किया हुआ है 3 का, इसमें वैल्यू क्या है C इन वैल्यू है, C इन वैल्यू है, तो ये C इन लिख दिया मैंने। 5 सर्किल किया है, इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है C इन, ये मैंने लिख दी। अब 6 सर्किल किया है, 6 सर्किल का मतलब ये है 6 और 7 यहाँ पे दोनों सर्किल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ C इन बार प्लस C इन बार प्लस C इन, ऐसे आएगा। तो ये आप जानते हो कि C इन बार प्लस C इन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे कोई सर्किल नहीं, 0 हो गया, यहाँ पे ये वाला 0 हो गया और ये वाला अकेला आ गया ना। तो ये जो यहाँ पे लिखा होता है, ये चीज लिखी होती है। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि I0 कितना है, 0 है, I1 कितना है, C इन है, I2 कितना है, वो भी C इन है, और I3 कितना है, वो 1 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया।
नाउ फिर से हम देख लेते हैं क्यूज को शेयर करने जा रहा हूँ। क्यूज को शेयर करूँगा तो ये क्यूज है जिसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यूज में हमने ऑप्शंस चेक कर लिया। ऑप्शन जिसमें I0 इज 0, I1 इज C, I2 इज 0, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 we will solve in next video। इस वीडियो में हमने यही सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।